Hello friend, welcome back to my channel. This is Anup, your friend. And friend, today I have brought one editorial from newspaper The Hindu, and we are going to talk about the editorial. And if you try to watch it, you will understand full editorial in your own language, and it is very easy. So my friend, in the last at the end of the video I just mentioned some word which is very difficult and very useful for the future. Okay, so one writer is there, Mr. Harry Lawrence, and he give very good and defined article about association technique. What he say is, like, if you use association technique to remember anything in the world, like if you are going to remember some word from your English dictionary and you use the association technique, so definitely you won't forget the word in your lifetime, entire life. And whenever you want to use the word, you will remember it. Definitely you will remember it. And how we do it, how we just go to association and do it? No, it got a technique. Like, you have to add something different. You have to first break the word in your meaning way, then make another meaning for you, for yourself, then associate हम हिंदी में इसको बोलते हैं संगति. संगति मतलब कि उसको किसी और चीज़ से जोड़ना. जस्ट प्लस इट, जस्ट add it with another something, with another. If you use logically way to remember your meanings, logically way, so you won't remember it. I'm 100% sure you will forget it, because it's a logical, and logical things we forget. But if you do some illogical, which is in the funny way, in the accidental way, in the danger way, which will give you threat, so you are going to remember that word. You are going to definitely remember that word. So let me explain you in my video how do we can do association thing with our vocabulary, with our mind dictionary. How do we remember those words with using this association technique? So in the end of the video I'm going to introduce a new word, then we'll see the timeline of the video if it's more large. So yeah, I'm going to give you the association technique in the next video. First we are going to see editorial from The Hindu, and it will help you. I'm 100% sure it will. And friend, if you like my video, if you like my confidence, then please give me like and subscribe. Thank you very much. So friends, today topic is consonants, not confusion, on resumption of rail service. यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो नए वर्ड दिख रहे हैं, कॉन्सोनेंस एंड रिसम्पशन. तो कॉन्सोनेंस का जो मतलब है वो है सहमति, आम सहमति, लोगों की सहमति. और रिसेप्शन का जो मतलब है वो है पुनरारंभ, मतलब कि दोबारा से किसी चीज़ को, किसी काम को शुरू करना. तो यहाँ पर जो हमारा टाइटल है आज का वो है कॉन्सोनेंस नॉट कंफ्यूजन ऑन रिसेप्शन ऑफ रेल सर्विस. तो इस पूरी लाइन का मतलब हो जाएगा रेल सेवा के स्वागत पर सहमति नहीं. So now next lies in bracket is relief trains will greatly aid stranded people, but state must have a common code for help. तो यहाँ पे आप देखिए कि जो एड है, AID, इसका मतलब होता है सहायता, हेल्प करना किसी की. जैसे फर्स्ट एड होता है ना, तो फर्स्ट एड में क्या होता है, चोट वगैरह लग जाती है तो फर्स्ट एड मतलब कि प्राथमिक जो सहायता मिलती है. तो वैसे यहाँ पर है एड है. फिर उसके बाद अब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो रिलीफ ट्रेन मतलब राहत ट्रेन, और लोगों की बहुत सहायता करेगी, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य के लिए. अब यहाँ पर देखिए, बट स्टेट मस्ट हैव अ कॉमन कोड फॉर हेल्प. राज्य के स्वास्थ्य या सहायता के लिए एक समान कोड होना चाहिए. The centers move to run 15 pairs of trains between New Delhi and major cities will serve as a trial for further relaxation of lockdown travel restriction. अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि 15 ट्रेनें दिल्ली से लेकर अलग अलग सिटी में जाएंगी.
अलग अलग सिटी में जाने के लिए सेंटर ने जो है, केंद्र ने जो है वो कहा है। अभी इसमें क्या है, एज अ ट्रायल फॉर फर्दर रिलैक्सेशन, मतलब आगे के लिए ये एक परीक्षण है, आगे के रिलैक्सेशन के लिए, एक राहत के लिए जो है, ये आगे के परीक्षण के लिए है। द ट्रेन्स आर अ लाइफ लाइन फॉर स्ट्रेंडेड सिटीजन। यहाँ पे स्ट्रेंडेड का मतलब हुआ कि जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए, फंसे हुए नागरिकों के लिए ट्रेन जो है एक लाइफलाइन का काम करेगी, एक जीवन रेखा का काम करती है। Although the scheme has been designed as a limited air conditioned service for higher fare paying travelers, तो जो ट्रेन की फैसिलिटी है उसमें जो लिमिटेड एयर कंडीशन की सर्विस लगाई है, हालांकि द स्कीम हैज़ बीन डिज़ाइन, मतलब एक स्कीम तो बनाई गई है, पर इसमें क्या है, लिमिटेड एयर कंडीशन सर्विस फॉर हाइगर फेयर पेइंग ट्रेवलर्स, जो लोग ऊंचा किराया दे के, ऊंचा फेयर दे के ट्रेन का सफ़र कर सकते हैं, उनके लिए लिमिटेड एयर कंडीशन की सर्विस लगाई गई है इस ट्रेन में। Thousands of migrant workers will continue to look for श्रमिक स्पेशल ट्रेन टू गेट होम। यहाँ पर जो है माइग्रेट वर्कर्स, माइग्रेट का मतलब होता है प्रवासी, प्रवासी मजदूर जो हैं वो लगातार उस ट्रेन की खोज कर रहे हैं, वो ट्रेन, वो सुविधा ढूंढ रहे हैं जो कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन, मतलब कि जो उनको सस्ते दामों में ले जाए, जो कि मेहनती हो, ना कि उसमें बहुत सारी स्कीम्स वगैरह हो, क्योंकि उनको अपने घर जाना है। There are multiple challenges to operating trains when the transmission of the novel coronavirus is rising. There are multiple challenge, multiple मतलब बहुत सारा, बहुत सारे हो सकते हैं, चैलेंज, चुनौती, यहाँ पर बहुत सारी चुनौती है टू ऑपरेटिंग ट्रेन सिस्टम, परिचालक, ऑपरेटिंग मतलब होता है ट्रेन को चलाना, चलाना, तो परिचालक ट्रेन, ट्रेन को चलाने के लिए बहुत सारी चुनौती हैं, कठिन चुनौती हैं। व्हेन द ट्रेन ट्रांसमिशन ऑफ द नोवल कोरोना वायरस इज़ राइजिंग, जबकि ट्रांसमिशन है जो कोरोना वायरस का है वो लगातार बढ़ रहा है, वो लगातार इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो ट्रेन है उसके चलने में बहुत सारे चैलेंज आएंगे। मैनी स्टेट हैव सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड द अराइवल ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल्स। घरेलू यात्रियों के, डोमेस्टिक ट्रेवल्स मतलब कि जो लोकल लोग हैं उनके आगमन, डोमेस्टिक अराइवल को बोलते हैं, आने को बोलते हैं आगमन, आगमन होता है ना जो जब हम पहुंच जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अराइवल, अराइवल आगमन को गंभीर रूप से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये सीवियरली है, जैसे SEVERELY, इसमें जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो जो इसका आर है वो साइलेंट चला जाता है, तो इसको, इसकी स्पेलिंग है SEVERELY, बट इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका फोनेटिक है सीवियरली, सीवियरली इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो यहाँ पर अराइवल ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल्स, यहाँ पे जो अराइवल है, अगर अराइवल वर्ड आपके लिए नया है तो अराइवल को याद करने के लिए एक फार्मूला होता है ETA। हम लोग जब कहीं काम करते हैं, कहीं पे पूछना होता है, तो वहाँ पे पूछते हैं हमसे कि व्हाट इज़ योर ETA, मतलब तुम यहाँ पर कब पहुँचोगे, एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल। तो ETA जो होता है वो अराइवल को भी कहा जाता है कि तुम कितने बजे तक पहुँचोगे, तो आगमन को अराइवल। बट देयर अटैम्प्ट्स, किसके अटैम्प्ट्स, जो गवर्नमेंट के अटैम्प्ट्स है, बट देयर अटैम्प्ट्स, अटैम्प्ट्स को प्रयास भी बोल सकते हैं, मतलब जब ट्राई करते हैं हम, प्रयास करते हैं, उसको अटैम्प्ट्स बोलते हैं। अटैम्प्ट्स एट रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग इसको हम बोलेंगे, जैसे मतलब एक के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी क्रम से उसको रख रहे हैं, उसको एक सीरीज़ से रख रहे हैं, सो फिर उसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग। तो एंट्री बाय रोड थ्रू पास इशू ऑनलाइन हैव बीन ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड के देखो बहुत सारे वो होते हैं, मतलब होते हैं। ओवरवेल्म्ड को हम वो व्याकुल भी बोल सकते हैं, जैसे कि वो अंदर से व्याकुल हो रहा है, या वो डर रहा है, नर्वस हो रहा है, और कहीं पे मतलब कि भारी पड़ जाना, काम जैसे हो रहा ना, मतलब कि काम हो नहीं पा रहा तो भारी पड़ गया भाई बंदा, ऐसे करके भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मीनिंग हो जाएगा इसका कि एट देयर अटेम्प्ट्स, उनके प्रयासों में, उन्होंने जो प्रयास किया था, एट रेगुलेटिंग, कि किसी काम, इस काम को करने के लिए, एंट्री बाय रोड थ्रू पास इशू, उन लोगों ने ऑनलाइन पास इशू करवाए थे कि लोगों को ऑनलाइन पास इशू करके उनको रोड पर जाने दिया जाए, वहाँ से वो लोग अपना ट्रैवल कर लेंगे। तो ओवरवेल्म्ड एंड द पास सिस्टम इज़ बिकमिंग
डिसफंक्शन, और जो पास का सिस्टम है, जो पास बनाने का इन लोगों ने सिस्टम बनाया था, जो एक तरीके से कानून चला देंगे पास बनाओ उससे चले जाएंगे, तो वो डिसफंक्शन हो गया। डिसफंक्शन यहाँ पे कि फंक्शन नहीं रहा है, वो फंक्शनल नहीं रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो बेकार हो गया है, उसका कोई काम ही नहीं रहा है, तो वो डिसफंक्शनल हो गया है। अब यहाँ है क्वारंटीन फैसिलिटी। क्वारंटाइन मतलब कि आप लोग तो अब तक तो पता चल गया होगा क्वारंटीन क्या है, इतना आजकल चला है क्वारंटीन। क्वारंटीन मतलब अलग करना किसी चीज़ को, अलग कमरे में रखना या बिल्कुल ही अलग कर देना, उसको बोलते हैं क्वारंटाइन। ओके, तो अब है यहाँ पे फैसिलिटी हैज़ कम अंडर स्ट्रेन। स्ट्रेन एक नया वर्ड है, अंडर का मतलब भी पता है, हैव कम का मतलब भी पता है, फैसिलिटी भी ठीक है। स्ट्रेन यहाँ पे, स्ट्रेन को हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे किसी चीज़ के दबाव में आ जाना, थक जाना, या मतलब हार मान जाना, तनाव हो जाना, खिंचाव हो जाना, इस सब को हम स्ट्रेन में लेके चलते हैं। तो एंड केस ऑफ एक्सपेक्ट्रियस। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट्रियस, यहाँ पर एक वर्ड आया है नया, एक्सपेक्ट्रियस। एक्सपेक्ट्रियस क्या है, इसको भी हम प्रवासी बोलते हैं। अभी जो हमारे पास एक थोड़ी देर पहले वर्ड आया था माइग्रेट वर्कर, MIGRANT, माइग्रेंट वर्कर, प्रवासी मजदूर। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्ट्रियस यूज़ हो रखा है उसका मतलब भी वही है, प्रवासी ही है। टेस्टिंग पॉजिटिव एज इन केरला। केरला में अभी ये जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है कम अंडरस्टैंड, क्वारंटाइन की जो फैसिलिटी है वो थक गई है, वो टूट गई है बुरी तरीके से, वो मतलब कि ख़त्म ही हो गई है। एंड केस ऑफ एक्सपेक्ट, एक प्रवासी जो है वो पॉजिटिव पाया गया केरला में। सो हैव एडेड टू देयर वरीज, केरला ने ये मेंशन किया है कि वो मतलब कि चिंतित हैं। तेलंगाना एंड एट लीस्ट 3 स्टेट्स डू नॉट फेवर रिसेप्शन। अभी देखिए यहाँ पे फिर से एक रिसेप्शन फिर से वर्ड आया है जो कि हमारे हेडलाइन में भी था, और इसका हमने अनुवाद जो किया था वो बताया था मैंने कि पुनरारंभ, किसी चीज़ को दोबारा से शुरू करना, तो वो चीज़ यहाँ पे दोबारा आ गई है। ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स। अभी यहाँ पे क्या है, केरला ने हैव एडेड टू देयर वरीज कि वो चिंता जता रही है, तेलंगाना और उसके साथ से 3 और स्टेट है, अलग अलग स्टेट है, कि वो लोग बिल्कुल फेवर में नहीं हैं। डू नॉट फेवर, वो लोग बिल्कुल फेवर में नहीं हैं रिसेप्शन के, मतलब कि पुनरारंभ से, ट्रेन की पुनरारंभ में वो लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। कर्नाटक वांट्स अ कंपल्सरी 14 डेज इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर ट्रैवलर्स। जो कर्नाटक है उन्होंने डिमांड की है कि हम लोगों को 14 डेज़ की इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल मतलब कि संस्थागत तरीके से क्वारंटाइन कराना। क्वारंटाइन कराना मतलब उनको अलग करना, आप हर किसी से अलग करना, उनको अलग कमरे में रखना। फॉर ट्रैवलर्स, जो भी ट्रैवलर्स आएंगे तेलंगाना के अंदर। ओके, वाइल दिस अंडरस्कोर, अंडरस्कोर यहाँ पे एक नया वर्ड आया अंडरस्कोर। अंडरस्कोर एक्चुअली में नया वर्ड नहीं है, आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में एक की होती है जिसपे अगर आप शिफ्ट दबा के उसको दबाते हैं, तो नहीं, शिफ्ट विदाउट शिफ्ट उसको दबाते हैं तो अंडरस्कोर आ जाता है। अंडरस्कोर उस लाइन को कहते हैं छोटी सी। तो यहाँ पर जो अंडरस्कोर का यूज़ हो रखा है, इसको कहा गया रेखांकित, मतलब कि हाईलाइटर, हाईलाइन करना। तो वाइल दिस अंडरस्कोर द हाई डिग्री of cuisine that many state wants to adopt को कहना है मतलब कि गोद लेना। हाई डिग्री ऑफ क्यूजन मतलब चेतावनी। तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन कि जबकि यह सावधानी, सावधानी आ जाएगा यहाँ पे, क्यूजन मतलब सावधानी होना है, तो सावधानी, जबकि यह सावधानी बरतने के उच्च स्तर हाई डिग्री, उच्च स्तर को रेखांकित, रेखांकित मतलब अंडरस्कोर करता है, जिससे कई स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स क्या करना, अडॉप्ट करना चाहते हैं, मतलब गोद लेना चाहते हैं या अपनाना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका मतलब। अब है सेवरली रिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट मूवमेंट। तो यहाँ पर सेवरली हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी चीज़ को बुरी तरीके से मना करना, कठोरता से, हार्ड तरीके से मना करना। तो कठोरता से रिस्ट्रिक्ट्स का मतलब होता है जैसे कहीं पर जाना मना है, कहीं पर घुसना मना है, तो उसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया कर दिया जाता है, उसको प्रतिबंध, हाँ प्रतिबंध इसके लिए सही वर्ड है, प्रतिबंध कर दिया जाता है। और इंटर का मतलब होता है कि अंदर की तरफ, इंटर स्टेट, स्टेट हो गया राज्य, इंटर स्टेट,
और मूवमेंट, मूवमेंट यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट हम उसको भी बोलते हैं, जैसे गति हो गई, चाल हो गई, उस सब को भी फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट उसको भी बोल सकते हैं। और मूवमेंट यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से बात करें तो मूवमेंट इस एरिया में आंदोलन को भी कहा जाता है, आंदोलन को भी, ठीक है। तो केरला मूव रीजनेबली, रीजनेबल रीजन, जिसका रीज़न हो, केरला ने मोर रीजनेबली, केरला मोर रीजनेबली इज आस्किंग दोस कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट बाय रोड, जो लोग रास्ते से चलकर अलग स्टेट, राज्य से केरला में आ रहे हैं, उनसे रीजनेबली, केरला ने उचित एक सवाल किया या परमिशन मांगी, या फिर उन्हें कहा विद परमिशन, ओके, विद परमिशन टू होम क्वारंटाइन, कि उनको होम क्वारंटाइन होना चाहिए, देमसेल्फ, अपने आप ही उनको होम क्वारंटाइन होना चाहिए। आफ्टर इनिशियली, इनिशियली, इनिशियल का मतलब होता है एट स्टार्टिंग, शुरुआत में, शुरू में ही, तो आफ्टर इनिशियलिंग कंसिडरिंग, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये जो कंसिडरिंग है, इसको हम इसको यहाँ पर मान के चलेंगे जैसे मानते हुए, ओके, कि हमने कंसिडर किया, हमने सोच समझ के जो करा है, तो शुरुआत में ही हमने सोच समझ के उन प्रवासी मजदूरों को होम क्वारंटाइन रहने के लिए कह दिया जो लोग बाहर से आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो सकता है, हो सकता क्या है, यही है। अब चलेंगे नेक्स्ट लाइन की तरफ। इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग, इंस्टीट्यूशनल मतलब कि संस्थागत, मॉनिटरिंग मतलब उसकी निगरानी करना, उसको देखते रहना। तो इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग, द सेंटर हैज़ लेफ्ट सच डिलेमस, ओके, इसको क्या बोलते हैं, डिलेमस, इसका मतलब होता है परेशानी, इसका मतलब होता है परेशानी। टू बी रिसॉल्व, रिसॉल्व का मतलब होगा यहाँ पे सॉल्व करना, सॉल्व करना मतलब हल करना। अभी देखिए जहाँ पे आर ई आता है, हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये जैसे रीस्टार्ट हो गया, रीस्केड्यूल हो गया, कि दोबारा से उस चीज़ को बनाना, रिक्रिएट हो गया, तो इस चीज़ को दोबारा से बनाने को हम लोग क्या कहेंगे कि ये मतलब दोबारा से शुरू होगा। अब यहाँ पे रिसॉल्व है लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोबारा से सॉल्व कर रहे, पहले ऑलरेडी सॉल्व हो गया था। कहीं कहीं पर जब आर ई लग जाता है शुरू में, तो मीनिंग वही रहता है वर्ड का जो उसके बाद लिखा है, मतलब रिसॉल्व का मीनिंग वही है, सॉल्व ही है, उसका हल ही कहेंगे, उसको री हल या फिर पुनः हल नहीं कहेंगे। ऐसे ही रिक्रिएशन होता है, अब क्रिएशन आप जानते हैं कि बनाने को होता है, और रिक्रिएशन जो कहते हैं, रिक्रिएशन का मतलब होता है रिलैक्स करना, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप दोबारा से बना रहे हैं, रिक्रिएशन का मतलब ही दूसरा हो जाता है। तो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है। ओके, रिसॉल्व बाय द स्टेट, की जो सेंटर है, जो हमारा ये सेंटर है, उन्होंने बहुत बड़ी एक परेशानी जो है वो स्टेट्स को दे दी है रिसॉल्व करने के लिए, स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया है रिसॉल्व करने के लिए। एट द होम मिनिस्ट्री स्ट्रैंड, ओके, अब यहाँ पर देखिए एक है STANDARD, स्टैंड, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ओके, इसका मतलब होता है मानक, किसी चीज़ को हम लोग जब नापते हैं, नाप तोल करते हैं, तो स्टैंडर्ड वो एक यूनिट में चला जाता है। तो एंड द होम मिनिस्ट्री स्टैंडर्ड, अब यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल फॉर द रिलीफ ट्रेन सर्विस, जी हाँ, होम मिनिस्ट्री जो है वो स्टैंडर्ड एक नापतोल कर रही है, और ऑपरेटिंग मतलब कि जो ट्रेन चलाने का प्रोटोकॉल है उसको लेकर, फॉर द रिलीफ ट्रेन सर्विस, राहत ट्रेन सेवा के लिए एक मापतोल कर रही है। मेयरली ऑर्डर पैसेंजर्स टू अधेयर, ओके, यहाँ पर एक अधेय, अधेय इसको बोलते हैं ADHERE, अधेय, इसका मतलब होता है, एक्चुअली में इसकी स्पेलिंग जो है पहले ADHERE, पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है, उसको अधेय बोलते हैं, उसको अधीर नहीं बोलोगे आप कि ADHERE लिखा है तो उसको अधीर बोल दो, नहीं, उसको अधेय बोलोगे, अधेय, अधेय, ओके। तो अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आज्ञा का जैसे पालन करते हैं ना, पालन करना, अनुसरण करना, या उसके साथ रहना, उसके साथ चलना, उस स्कीम के साथ चलना जो गवर्नमेंट ने दे रखी है, उस स्किल उस मतलब उस चीज़ को फॉलो करना, चिपक के रहना उस चीज़ से। तो यहाँ पे उस ये अधेय का मतलब वो होता है। तो ऑर्डर पैसेंजर्स टू अधेय टू हेल्थ प्रोटोकॉल, ओके, तो मतलब कि जो पैसेंजर्स को ऑर्डर दिए गए हैं वो हैं कि आप लोग हेल्थ प्रोटोकॉल जो है, एक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल है, उसके साथ बने रहेंगे। प्रिस्क्राइब्ड द डेस्टिनेशन स्टेट और यूनियन
टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? यूनियन जो टेरिटरी होता है, यूनियन टेरिटरी को हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर है कि ये जो अब प्रिस्क्राइब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है निर्धारित करना। अभी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको चेक करता है, वो दवाई वगैरह देता है, तो जो स्लिप पे दवाई देता है ना, जो स्लिप पे नाम लिखता है दवाई का, हम उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मतलब उसने एक निर्धारित कर दिया है कि आपको बुखार है, आपको पैरासीटामोल लेनी है, आपको पैनाडोल लेनी है, कौन सी टैबलेट लेनी है, तो वो उसका नाम उस जो प्रिस्क्रिप्शन देता है उसमें मेंशन कर देता है। तो यहाँ पर उसी का जो एक फॉर्म है प्रिस्क्राइब्ड, यहाँ पर उसी का एक फॉर्म है और इसका मतलब भी निर्धारित करना। प्रिस्क्राइब्ड द डेस्टिनेशन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ऑलराइट, सो एज इंडिया मूव इनटू द लास्ट वीक ऑफ द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, लास्ट वीक ऑफ द एक्सटेंडेड मतलब कि जो एक्सटेंड किया था, जो लॉकडाउन को बढ़ाया था, जब इंडिया उसके अंतिम हफ्ते में पहुंचा, it is important for state to agree on a standard protocol on how to deal with the travelers whose number are bound to grow। यहाँ पर एक वर्ड है बाउंड। बाउंड का मतलब होता है कि 100% होगा या बाध्य है, या मतलब कि वो होना ही होना है। तो यहाँ पर है एज इंडिया मूव्स इनटू द लास्ट वीक ऑफ द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, मतलब कि जब भारत जो है वो अपने लॉकडाउन जो उन्होंने बढ़ाया था उसके लास्ट वीक में पहुंचा, बढ़े हुए लॉकडाउन के लास्ट वीक में पहुंचा। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्टेट टू अग्री ऑन आ स्टैंडर्ड, मतलब कि उनको एक स्टैंडर्ड पे अग्री होना है, प्रोटोकॉल पर, कि हाउ टू डील विद द ट्रेवलर्स, कि वो लोग उन यात्रियों के साथ कैसे उनको डील करेंगे, हुज नंबर आर बाउंड टू ग्रोथ, मतलब कि जो बढ़ेंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे, और 100% है कि बढ़ेंगे, उनके साथ के लिए क्यों नहीं किया। एक्सपीरियंस इन द यूएस, यूरोप एंड एशिया शोज दैट विद द रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन कर्व्स, यहाँ पर है कि जब एक्सपीरियंस था, मतलब कि इन लोगों के सामने कुछ हुआ था, जो यूएस में देखा इन्होंने, और यूरोप में देखा, एशिया में देखा, बहुत जगहों पे इन्होंने देखा कि वहाँ पर रिलैक्सेशन जब छूट दी गई, लॉकडाउन में जब छूट दी गई, तो कब प्रतिबंध, इसको CURBS इसको बोलते हैं प्रतिबंध, इसको रोकथाम प्रतिबंध इस समय लेके जाते हैं। तो जब लॉकडाउन में छूट दी गई तो मेनी टेंट टू लोअर दियर गार्ड, मतलब टेंट, देखिए यहाँ पे जो टेंट का वर्ड होगा TEND, टेंट को हम बोलते हैं जैसे कोई फूल होता है ना, वो मुरझा के झुक जाता है, तो उस पॉइंट में लेके जाते हैं टेंट को भी। तो टेंट वहाँ पे ये काम करता है कि मतलब झुक गया। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं था, यूएस यूरोप है, कि आप लोगों ने देखा यूएस यूरोप और एशिया में क्या हुआ था, जब वहाँ पर लॉकडाउन में छूट दी गई थी, तो उसके बाद से मेनी टेंट, बहुत सारे झुकाव आ गए थे कानून में। ओके, इंडिया, अब यहाँ पे देखिए, इंडियाज पेक्यूलियर, इसको बोलते हैं पेक्यूलियर, PECULIAR, पेक्यूलियर नहीं बोलेंगे इसको, इसमें भी आर जो है वो साइलेंट जाएगा, पेक्यूलियर बोलेंगे। और इसका मतलब इतना होता है जैसे कुछ अजीबो गरीब होना, कुछ डिफरेंट टाइप का होना, कुछ गलत होना, मतलब अजीबो गरीब टाइप का होना। तो इंडियाज पेक्यूलियर सर्क्यूमस्टेंस आप परिस्थिति बोलते हैं इसको, जो परिस्थिति है, कंडीशन है, उसको सर्क्यूमस्टेंस बोलते हैं। इंक्लूडिंग द डिफ़िकल्टी ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस एंड लो कॉम्प्लायंस। अब देखिए यहाँ पे जो है इंक्लूडिंग द डिफ़िकल्टी ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस, आपने एक वो सुना होगा, नियम है कोविड-19 का, कि इसमें आप लोगों को जो सोशल डिस्टेंस है उसके नियम का पालन करके चलना है। तो यहाँ पर है कि इंडिया जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, अपने कानून को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जो उन्होंने कानून लागू किया है उसको, फिजिकल डिस्टेंसिंग के, जब ये ट्रैवलिंग का सीन खुला है तब से वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे इसको। एंड लो कॉम्प्लायंस मतलब अनुपालन, उस चीज़ का पालन नहीं हो पा रहा है, लो हो रहा है, उसका काम नहीं हो पा रहा। विद रूल्स could increase infection rapidly, यहाँ पे देखिए RAPIDLY, इसको बोलते हैं रैपिडली, इसका मतलब है बहुत तेज़ी से,
कि इनका जो ये रूल है, इससे इन्फेक्शन क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, बहुत तेज़ी से चल सकता है। A system for orderly movement is necessary to relieve the social and economic pressure since the national lockdown began. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिस्टम ऑफ ऑर्डनरी मूवमेंट इज नेसेसरी। ओके, सिस्टम ऑफ ऑर्डनरी, ऑर्डनरी मतलब हो गया जैसे ऑर्डर से, व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से काम करना या मूवमेंट करना। इज़ नेसेसरी बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी मतलब ज़रूरी होता, इज़ नेसेसरी टू रिलीव द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर। देखिए यहाँ पे जो रिलीव है उसका मतलब है राहत, और सोशल सामाजिक, और इकोनॉमिक आर्थिक। तो इसको रिलीव करने की, इसको राहत देने की बात की गई है। टू नेशनल लॉकडाउन बिगिन, जब से ये नेशनल लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से इन्हीं चर्चाओं पे बात करी। इज़ नेसेसरी टू relieve the social and economic pressure. So now next line is, train and buses are the most affordable ways for those stranded to return home. जो ट्रेन और बस है वो बहुत ही सस्ता रास्ता है, वो बहुत ही सस्ता तरीका है उन लोगों के लिए जो लोग फंसे हैं अपने घर को जाने के लिए। and such travel can be facilitated with a safety protocol। और ऐसे जो संसाधन हैं, संसाधनों की सुविधा प्रदान करना है, उसको सेफ्टी प्रोटोकॉल से चलाना, जगहों में चलाना ही सही है। फिज़िकल डिस्टेंस, जो जिसमें एक है फिज़िकल डिस्टेंस, कि जो कोविड के लिए बनाया था कि सोशल डिस्टेंस बना के रखेंगे, वो वाला कानून। यूज़ ऑफ मास्क एंड हैंड वॉशिंग। तो यूज़ ऑफ मास्क, जो लोग मास्क का यूज़ करते हैं, वॉश अपने हाथों को धोते हैं। सिटीज़न कैन बी परसुएड, यहाँ पे देखिए परसुएड है, PERSUADED, इसका मतलब होता है राजी होना, अपनी मर्जी से राजी होना। परसुएड टू कंप्ली विद दिस मतलब कंप्ली का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो फैसला है गवर्नमेंट का उसका पालन करना, उसके साथ चलना, उसको मानना। इफ़ गवर्नमेंट हैव क्लियरिटी ऑन हाउ दे विल फैसिलिटेट ट्रेन एंड रोड ट्रेवल, वो लोग किस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे, अगर सरकार के पास स्पष्ट है कि वो किस तरीके से ट्रेन और रोड का ट्रैवल शुरू करेंगे एट द डेस्टिनेशन, उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। अनलेस मेडिकल वारंटेड, ओके, मेडिकल वारंटेड मतलब कि जैसे किसी को जमानत मिल जाती है, किसी को गारंटी दी जाती है, तो उन लोगों को हम बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं वारंटेड है, ये ऑलरेडी वारंटेड है। तो अनलेस मेडिकल वारंटेड पैसेंजर कैन सेल्फ क्वारंटाइन एट होम, कि उन लोगों को खुद को अपने घर में बंद करना होगा, अलग रखना होगा, क्वारंटाइन करना होगा। दिस इज़ समथिंग दैट सेंटर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड, ये कुछ है जो सेंटर ने एक बताया था, प्रिस्क्राइब किया था, निर्धारित किया था कि इवन फॉर वेरी माइल्ड, यहाँ पर माइल्ड जो है उसका मीनिंग है हल्का, वेरी लाइट, जो माइल्ड होता है उसका मतलब होता है वेरी लाइट। प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट मतलब कि जिसके पास बहुत ही कम सिम्टम्स है, उसको भी गवर्नमेंट ने कहा है कि अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करने के लिए। ओके, a patchwork of rule and regulation among state will only confuse travelers and generate needles anxiety। ये देखिए यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है एंग्जाइटी, तो इसको हम बोलते हैं एंग्जाइटी, ANXIETY, एंग्जाइटी। और एंग्जाइटी का मतलब होता है जैसे किसी की चिंता करना, किसी की फिक्र करना, इस सब चीज़ों को एंग्जाइटी बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए ऊपर की तरफ चलते हैं तो देखते हैं उत्पन्न, जनरेट को उत्पन्न करते हैं, जनरेट उत्पन्न हो गया, और ट्रेवल्स कंफ्यूज, ओके, विल हैव अमंग, यहाँ पर अमंग एक वर्ड है। अमंग मतलब किसी चीज़ों के बीच में कोई एक अलग से चीज़ जो होती है वो अमंग कहते हैं उसको।
रूल एंड रेगुलेशन ओके ऑफ पैच वर्क। ओके पैच वर्क, पैच क्या है? पैच आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पूरी बॉडी पे काला रंग होता है पर एक जगह पे कहीं पे सफ़ेद रंग होता है, तो उसको भी हम पैच कहते हैं। दूसरा पैच क्या कहते हैं, जैसे कोई जीन्स वगैरह फट जाती है उसके ऊपर एक वो लगा देते, कपड़ा लगा के उसको सिल देते हैं, तो उसको भी पैच बोलते हैं। तो यहाँ पर पैच वर्क है मतलब कि यहाँ पर कपड़ा सिलना, चीथड़े सिलना, फटा हुआ सिलना, ऐसे भी बोला जा सकता है इसको। तो पैच वर्क, तो अ पैच वर्क ऑफ रूरल रेगुलेशन अमोंग state will only confuse travelers and generate needles anxiety. So today our article today our this editorial is complete. ओके लेट अस बिगन द पार्ट 2। मैंने कुछ यहाँ पर वर्ड्स और मीनिंग रखी है जो कि अभी हमारे चैप्टर से निकाली है, तो इसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल और मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ आप लोगों के इस लाइक से और सब्सक्राइब से, और मैं आगे भी इसी तरीके से नए एडिटोरियल पर कुछ लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।